آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ الوداع آیت اللہ خامنائی، شہید سپریم لیڈر کا سفر آخرت۔ آج تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کرایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریبات 5 جولائی تک جاری رہیں گی۔ 6 جولائی کو تہران میں مرکزی جنازہ جلوس، 7 جولائی کو قم اور 9 جولائی کو مشہد میں بھی جنازہ کے جلوس منعقد ہوں گے۔ تدفین روزہ امام رضا علیہ السلام میں کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر ہونے والے مبینہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا سفر آخرت۔ پاکستان غم میں شریک، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم شہید سید آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا اور پاکستانی وفد نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطاعت عطاء اللہ تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ تہران میں تعزیتی تقریبات، غیر ملکی وفود کی آمد۔ ترکی، عراق، لبنان، فلسطین، روس، بلغاریہ سمیت متعدد ممالک کے سرکاری وفود کی شرکت۔ شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور فاتحہ خوانی کی۔ تمام تعزیتی تقریبات صرف عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی وفود کے لیے مختص تھیں۔ بھارت کی مسلم اور کشمیر دشمنی 2 کشمیری علماء کو شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ انہیں ایرانی بین الاقوامی تعلقات کے محکمے نے مقتول رہنما آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی مصطفی کو جمعرات کو بیورو آف امیگریشن نے روک دیا تھا۔ تنظیم کے ایک ترجمان نے کہا کہ اہلکاران نے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور تمام مطلوبہ سفری دستاویزات اور تصدیق شدہ سفری انضمامات کے باوجود انہیں پرواز میں سفار ہونے سے روک دیا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ انہیں روکے جانے کی نہ تو وضاحت دی گئی اور نہ ہی کوئی تحریری وجہ بتائی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ خامنائی کے لیے ایران کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے۔ ایران کے اعلیٰ ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو الوداع کیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں بڑی کمی، عوام کو تھوڑا سا ریلیف۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسہ کی کمی کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی میں پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 297.53 روپے فی لیٹر ہو گئی اور ڈیزل کی نئی قیمت 309.50 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت سرمایہ کاروں کو نوازنے لگی، غریب ریلیف سے محروم۔ پیٹرول کی قیمتوں میں معمولی کمی پر عوام کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سستا ہونے پر معمولی ریلیف ملتا ہے۔ حکومت کو غریب کا سوچنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ 1 روپے 97 پیسے کی کمی کو افسوسناک اور عوام دشمن فیصلہ قرار دے دیا۔ عالمی مارکیٹ میں جنگ سے پہلے کی قیمتوں میں تیل کی قیمت مقرر کرنے کی جائیں گی۔ حکومت عوام کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ FBR کرپشن کا اڈا اور لیوی کو غریب اور متوسط طبقے پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا 48 گھنٹوں میں ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔ ثانیہ کانا پر دل بہت افسردہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 اموات ہوئیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود بھی ذمہ داری ادا کریں، ایسی جگہ بچوں کو تعلیم کے لیے نہ بھیجیں جو محفوظ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ماں باپ بچوں کو نہروں میں نہانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا، وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے۔
14 अमवात हुई हैं कल उसकी छत गिरने से। गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, और बच्चे जाते हैं बाहर नहरों में नहाने के लिए, दरियाओं में नहाने के लिए, माँ बाप उनको खुला छोड़ देते हैं। मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कहना ईदगाह अहमद छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से ताज़ियत और फातिहा खाने की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने जाँ बहक बच्चों के माओं से मुलाकात की और उनसे दिली हमदर्दी का इज़हार किया। मरियम नवाज़ ने मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि छत गिरने से बच्चों की अमवात पर होने वाला दुख अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं खुद माँ हूँ, आपका गम समझ सकती हूँ। जब बच्चों ने बताया कि एक ईंट गिरी है तो खातून टीचर को बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए थी। मरियम नवाज़ ने हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें प्यार किया। मुतासरा ख़ानदानों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की आमद, बरवक्त इमदाद और इलाज की फरहमी पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अथॉरिटी के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। गैर रजिस्टर्ड तमाम तालीमी इदारों की निगरानी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि तलबा के मफाद के पेश नज़र सूबे भर में तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म और कानून के दायरे में लाए जाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना साने में जाँ बहक बच्चों के घर पहुँचे, मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, ताज़ियत और फातिहा खाने की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि यह सानिया हुकूमती गफलत का नतीजा है। ताहम मुकदमा गरीब टीचर और उसके शोहर के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतासरा इलाके में बुनियादी सहूलियात, मेयारी सरकारी स्कूल, मुनासिब सड़कें और हंगामी तिबी सहूलियात मौजूद नहीं। अस्पतालों में डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी और रेस्क्यू को रास्ता न मिलने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ। उन्होंने हुकूमत से तालीमी इदारों और बुनियादी सहूलियात की फौरी बेहतरी का मुतालबा करते हुए कहा कि अवाम को महफूज तालीम और मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपका ये खाक, ये एक तो है मसला इमारतों का कि बस्तियां आप इनके हालात देख रहे हैं, यहाँ तो कोई इनका पूछने वाला नहीं। जगह मिलती है, किराए के ऊपर जगह ले लेते हैं, छत डालने की कोशिश करते हैं, ना कोई बिल्डिंग कंट्रोल है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई पूछने वाला है, इसलिए सारा मलबा इन पे डालना भी ठीक नहीं। तो आप बताएं कि जब ये अपने बच्चों को कोई मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहा था, कोई गाड़ी अगर किसी को मिल गई तो गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं था, तो कितने बच्चे तो रास्ते में दम तोड़ गए। इन्होंने बताया स्कूल प्रॉपर करना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार की तालीम मेयारी हो, महफूज हो। जब आप अस्पतालों में उनको ट्रीट नहीं कर सकते, जब आप रास्ता नहीं बना सकते, तो आपका ये खाक तर्ज़ हुक्मरानी है। अल्लामा नासिर मदनी का चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में ज़ेर इलाज अल्लामा नासिर मदनी के ज़रूरी टेस्ट किए गए। अल्लामा नासिर मदनी की हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि हीट स्ट्रोक के बायस अल्लामा नासिर मदनी की तबीयत बिगड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से अल्लामा नासिर मदनी के लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाया गया। वज़ीर आला ने अल्लामा नासिर मदनी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इज़हार किया। अल्लामा नासिर मदनी ने मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इज़हार किया। पीटीआई के बाइकआउट से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हर हल्के में बड़ी तादाद में उम्मीदवार मौजूद हैं, इसलिए किसी जमात को इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बाइकआउट से सिर्फ उन अनासर को मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है जो इंतखाबात नहीं चाहते। आज़ाद कश्मीर की अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हुकूमत के पीटीआई से राब्ते भी जारी हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल में तौसी कर दी गई है। उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने की नई तारीख 4 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 जुलाई को जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। हतमी फहरिस्त और इंतखाबी जो निशान हैं वो 6 जुलाई को जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का महकमा सेहत में मेडिकल ऑफिसर्स की तकर्रियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला, तमाम तकर्रियाँ कालअदम करार दे दी। अदालत ने मामला मजीद तहकीकात के लिए एहतसाब ब्यूरो को भिजवाते हुए
90 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि तकर्रर पाने वाले मेडिकल ऑफिसर्स को तनख्वाह अदा की गई जो तनख्वाहें हैं वो भी वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने करार दिया कि तकर्रियाँ कानून और मेरिट के तकाज़ों के बरक्स गई हैं। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक 71 आसामियों के इश्तिहार के बावजूद 250 से ज़ायद अफराद को तैनात किया गया। अदालत ने न सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स बल्कि इसी इश्तिहार के तहत होने वाली दीगर तकर्रियों की भी तहकीकात का हुक्म देते हुए तकर्रियों के तरीक़ाकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पंजाब से और रिटायर्ड ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर सीडीए में मेंबर बिल्डिंग लगाने का फैसला। मेंबर बिल्डिंग लगाने के लिए समरी विफाकी काबीना को इरसाल। सराय के मुताबिक पैनल ने मेंबर बिल्डिंग के लिए असमत शरीफ ढिल्लों, नैयर सईद और असफर महमूद का नाम फाइनल किया। काबीना की जानिब से असमत शरीफ ढिल्लों के नाम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मेंबर स्टेट सीडीए को भी पंजाब से लाकर मेंबर लगाया गया था। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान को एक ख़ानदानी कॉरपोरेशन की तरह चला रहे हैं। उनके करीबी रिश्तेदार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना तौर पर उनके साथ ज़्यादती, तशद्दुद और भत्ताखोरी की। फैसल वावड़ा ने कहा कि हुकूमत वाक़ये को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये भी है कि मुकदमे को ज़्यादती के बजाय सिर्फ भत्ताखोरी तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से छोड़ने का और उनको अपने ममालिक जो है वापस भेजने की तैयारियां भी जारी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड होने वाला बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था, मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि ये वो जमहूरी निज़ाम है जिसमें चंद सौ बासर अफराद ने मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। यही तबका बरसों से मुल्क को लूटता रहा और अब इज़्ज़तें भी महफूज नहीं रहीं। पाकिस्तानियों की तकदीर इन्हीं ख़ानदानों की नस्ल दर नस्ल सियासत के हाथ में है। फैसल वावड़ा ने मज़ीद कहा कि जेलों को जदीद बनाने की बातें हो रही थीं और अब इसका आगाज़ भी अपने ही रिश्तेदारों से हो रहा है। फैसल वावड़ा ने कहा कि अगर पाकिस्तान और उसकी आलमी साख का ज़रा भी ख्याल है तो इसहाक डार को फौरी तौर पर अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब मईशत से जुड़ी खबरें शामिल करते हैं। बजट में ताजरों और सनतकारों की तजवीज़ को मद्देनजर रखा गया। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए दिल जमी से काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि टैक्स वसूली के लिए ताजर और चैम्बर्स FBR का साथ दें। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। आइंदा बजट के लिए तजवीज़ के हवाले से सबके पास जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तरसीलात ज़र को पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन करार दे दिया। कहते हैं कि मुल्क की मईशत बतदरीज इस्तेकाम की जाने बढ़ रही है, महंगाई काबू में है, ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत हुए हैं, जबकि तरसीलात ज़र भी रिकॉर्ड सतह पर पहुँचने के इम्कानात हैं। तफसीलात आबदा खान की रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों के मुकाबले में मुल्क की मेशत मुसलसल बेहतर हो रही है। माइक्रो इकनॉमिक अशारिये मौशी इस्तेहकाम की अक्कासी करते हैं। GDP की शरह नमू तवक्कुआत से कुछ कम रही, ताहम नजरसानी के बाद ये 3.5% से जायद रहने की तवक्को है। बड़ी सनत और खिदमात के शोबे में नुमाया बेहतरी आई है। हमारा सरप्लस जो है वो 2 बिलियन के आसपास जो है वो 0.5% ऑफ GDP जो है वो 2025 में सरप्लस हुआ। और इस साल अभी तक जो अगर आपने देखा हो तो पहले 11 महीनों का जो हमारे पास जो है डाटा रिलीज हो चुका है तो उसमें अभी तक सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि माली साल 2026 में औसतन महंगाई 7.05% रही, जो स्टेट बैंक के मुकर्ररा हदफ के करीब है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आने वाले महीनों में अफराते ज़र में कमी वाक़ई होगी। हमारा जो 4th क्वार्टर है जिसमें कि मिडल ईस्टर्न सिचुएशन की वजह से कुछ स्लो डाउन इकानमी में आया, तो उसके बावजूद ये 3.4% से ऊपर होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस में तब्दील हो चुका है। बैरूनी खातों की सूरत हाल मुस्तहकम है और जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 18.4 अरब डॉलर हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बढ़ती सरमायाकारी और मुस्तहकम बैरूनी खातों के बायस नए माली साल में मेशत की कारकर्दगी मजीद बेहतर होने की तवक्को है।
सिंध हाई कोर्ट ने सरजानी टाउन में लड़की के अगवा और ज्यादती मुकदमा के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम अदनान को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि मुलजिम के खिलाफ ज्यादती के इल्जामात के बादी नज़र में काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले हैं। प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़की को घर से अगवा करने का इल्ज़ाम है। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ झूठा मुकदमा है। मुतासर लड़की का बयान और मुकदमे के रिकॉर्ड में तजादात हैं। मुकदमे के हक़ाइक़ से तासुर मिलता है कि मुतासरा खातून मुलजिम के साथ अपनी मर्जी से गई थी। अदालत ने करार दिया कि मुतासरा खातून का 164 का बयान गैर फितरी और बज़ाहिर नाकाबिल यकीन मालूम होता है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट ज़्यादती के इल्ज़ामात की तायद नहीं करती। तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने मुख्तलिफ बहानों से तिबी मुआयने से गुरेज किया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुदैया और अहल खाना भी लापता हो गए हैं। तफ्तीशी ऑफिसर की कोशिशों के बावजूद मुदैया या अहल खाना का सुराग नहीं लगाया जा सका। दो दिहाइयाँ गुजरने और अरबों रुपए के ज़िया के बाद रावलपिंडी का सच्चा बच्चा अस्पताल गुज़िश्ता 4 हुकूमतों की नाअहली की मिसाल बन गया। माँ और बच्चे के इस मुश्तरका मंसूबे से अब माओं का हक छीन कर उसे सिर्फ चिल्ड्रन अस्पताल का नाम दे दिया गया। यानी अब यहाँ माओं का नहीं, सिर्फ बच्चों का इलाज होगा। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नबील सती की इस रिपोर्ट। सियासी अना और इंतजामी नाअहली की बदतरीन मिसाल। रावलपिंडी में कायम ये अस्पताल 2 दिहाइयों से फंड्स की बंदिश और सियासी चपकलश की भीड़ चढ़ रहा है। ताखीर के बायस जो मंसूबा कभी 2 अरब का था वो अब बढ़ते बढ़ते 14 अरब रुपए की रिकॉर्ड लागत तक पहुंच चुका है। इस तवील तरीन ताखीर का सबसे बड़ा नुकसान रावलपिंडी और मज़ाफात के गरीब अवाम बिलखसूस खवातीन को उठाना पड़ रहा है। अवाम को उम्मीद थी कि इस अस्पताल के बनने से हामला खवातीन को रिलीफ मिलेगा, मगर पंजाब हुकूमत के हालिया फैसले ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जच्चा बच्चा अस्पताल का स्टेटस खत्म करके इसे सिर्फ बच्चों के लिए मखसूस करने से हामला खवातीन की मुश्किलात जूं की तूं बरकरार रहेंगी। ये 20 साल से ऐसे हो रहा है, 5 साल से नहीं है। जब भी नई हुकूमत आती है थोड़ा पता ड्रामा शोर चार करे फिर भूल जाए। रुका हुआ है, ठीक है, झाड़ियाँ हो गई हैं, खस्ता हालत हो गई है, मजीद कोई वो नहीं है कि तैयार हो सके, मुकम्मल हो जाए ताकि रावलपिंडी के बच्चों को इलाज बेहतर हो सके। साल 2005 में शुरू होने वाला ये मंसूबा आज 2026 में भी सिर्फ तसल्लियों और नई डेडलाइंस के सहारे चल रहा है। अब दावा किया गया है कि इसे रवा साल फाल कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि 2 नस्लों का हक मारने और अरबों रुपए के ज़िया का हिसाब कौन देगा। रावलपिंडी के अवाम पूछते हैं कि क्या ये अस्पताल वाकई इस साल फाल होगा या एक बार फिर ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट और कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद रहेगा। रावलपिंडी के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि अस्पताल की जल्द अज जल्द तामीर मुमकिन बनाई जाए ताकि रावलपिंडी के शहरियों को बेहतर इलाज मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ नबील सत्ती, ABN न्यूज़ रावलपिंडी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।